Medical College Rohtak was established in 1962 on a large sandy piece of land donated by villagers of Kanheli. It was time when Haryana and Punjab were one state, and Haryana was one of the backward areas of Punjab. Most of the development was limited to Punjabi-speaking areas. Punjab state already had 2 government medical colleges at Patiala and Amritsar and 2 private colleges at Ludhiana. Legislature of this area demanded to establish a medical college and hospital in the region. For this, they approached Chief Minister Shri Pratap Singh Kairun. Earlier, this college was to be built at Hisar, but due to sincere efforts of freedom fighter late Chaudhry Ranbir Singh Ji, the institution was built in this very town. After all legislative procedures, the able and skilled architect Lee Corbusier prepared the plan. और इस तरह इस नन्हे शिशु मेडिकल कॉलेज रोहतक का जन्म हुआ। डॉक्टर दीवान इस मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। डॉक्टर सी प्रकाश, डॉक्टर वर्याम सिंह और डॉक्टर हीरालाल गुप्ता ने डॉक्टर दीवान को इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। शुरुआती एडमिशन बैचेस की कक्षा मेडिकल कॉलेज पटियाला में लगती थी। 1963 में पहली बार इन विद्यार्थियों ने रोहतक में कक्षा लगाई। डायसेक्शन हॉल का जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है वो ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत 5 नंबर वार्ड के एक छोटे से कमरे से हुई। फिजियोलॉजी लैब और लेक्चर थिएटर भी वार्ड के छोटे छोटे कमरों में ही चलते थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, which is today a great name in itself, is fruit of hard work of many great personalities like Dr. Vidyasagar, Dr. Yudhishthir Vasudeva and Dr. Inderveer Singh. Dr. Vidyasagar was a highly respected man and was so much devoted to his duties that he stayed in the ward day and night. Dr. Vasudeva in a very short time established a PHC at Dighal and later became advisor to Planning Commission of India. Dr. Inderveer Singh, professor of anatomy, who is internationally renowned personality, is author of many books which are read world over. Dr. Prem Chandra took over as second director after retirement of Dr. Diwan. अब इस शिशु ने चलना सीख लिया था तो समय था अपने पंख फैलाने का। सन 1969 में मेडिकल काउंसिल ने पहली बार MD/MS कोर्स शुरू करने की अनुमति दी, जिसमें 4 सीटों के लिए केवल 5 आवेदन प्राप्त हुए। सन 1981 में हॉस्पिटल में 250 बेड वाले मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और बर्न यूनिट की स्थापना हुई। Growth and development of this institution was carried out by highly qualified and efficient directors over the years. Dr. S.S. Sangwan, who was then head of the orthopedics department, took over as director on 8th June 2006. He is a teacher par excellence and recipient of prestigious B.C. Roy Award for excellence in teaching. निदेशक के तौर पर भी इनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। During his tenure, His Excellency APJ Abdul Kalam visited the institution and appreciated the work carried out here. Institution is proud of producing many distinguished alumni who are working as head of institutions, surgeons and physicians nationally and internationally. As college has been proud of its high academic standards, it equally boasts of its cultural heritage. Cultural Club under the guidance of Dr. P.S. Maini and Dr. Chibbar was produced world-class artists among us the doctors. Haryana is known for its sports and athletic traditions, and so is Medical College Rohtak. Every year, 3 days sports and cultural events for students as well as faculty members is one such tradition which is still continuing. The journey of this institution was continued with great enthusiasm. इस संस्थान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने और राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की चाह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। And University of Health Sciences was born on 2nd June 2008 with Dr. S.S. Sangwan as its first Vice Chancellor. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, मान्यता प्रदान करने, उचित एवं सैद्धांतिक तरीके से भारतीय एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में संवाद, प्रशिक्षण व अनुसंधान सुनिश्चित करने व PGIMS के प्रशासन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई थी। काबिल जिक्र है कि हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर S.N. चुग न केवल एक कुशल क्लिनिशियन हैं, बल्कि उन द्वारा लिखी गई दर्जनों किताबें छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।
विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय से ही अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तेजी से कार्यरत है। हमारी कुल सचिव डॉक्टर सरला हुड्डा के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विद्यालय ने राज्य में अभी तक स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े 82 कॉलेज, जिनमें डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी शामिल है, को मान्यता प्रदान की है। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उसके अधीन आने वाले सभी कॉलेजों के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में समानता व पारदर्शिता लाना और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम कोर्सों की शुरुआत करना शामिल है। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कॉलेजों के चहुमुखी विकास, अध्ययन व शोध कार्य व रोगियों के बेहतर इलाज के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकें। The incumbent director, Dr. C.S. Dhul, has carried the baton forward. As the head of the Department of Ophthalmology, he was instrumental in upgrading the department to Regional Institute of Ophthalmology. He is known for his fine administrative skills. ये PGIMS के लिए गर्व की बात है कि इस संस्थान में न केवल दूसरे देशों से भी चिकित्सक प्रशिक्षण के लिए आते हैं, अपितु बाहर के देशों के मरीज भी उपचार के लिए यहाँ आने लगे हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक चिकित्सा महाविद्यालय, एक दंत महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कॉलेज कार्य कर रहे हैं। PGIMS उत्तर भारत के श्रेष्ठ कॉलेजों में माना जाता है। डीन PGIMS डॉक्टर V.K. जैन के मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय के 7 डॉक्टर इंग्लैंड से कॉमनवेल्थ फेलोशिप द्वारा चिकित्सा की नई पद्धतियाँ सीखकर हमारे यहाँ मरीजों का उपचार कर रहे हैं। शोध कार्यों में भी यहाँ के डॉक्टर पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में हमारे डॉक्टर अपना लोहा मनवा चुके हैं। डॉक्टर सांगवान द्वारा निर्मित रोहतक नेल विश्व भर में अपनाई जाती है। द सर्जिकल टेक्निक इनोवेटेड बाय डॉक्टर N.K. Maggu, head of orthopedics department, and his team has been decorated in the Bible of Orthopedics, Campbell's Operative Orthopedics, the book read world over. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ 28 फरवरी 2009 को किया गया, जिसके तहत सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अथक प्रयासों के कारण संस्थान को 125 करोड़ रुपए भारत सरकार की ओर से और 25 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा विस्तारीकरण हेतु दिया गया है। इसी के फलस्वरूप सभी आधुनिक उपकरणों से लैस न्यू ऑपरेशन थिएटर शीघ्र ही लोगों को समर्पित होगा। Dreams have no limits. छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, चौधरी रणबीर सिंह OPD ब्लॉक, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, लेक्चर थिएटर और सभागार का कार्य पूर्ण हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत वाली ब्लड स्टोरेज वैन तथा रक्तदान बस हरियाणा सरकार द्वारा संस्थान को दी गई है, ताकि ब्लड कलेक्शन और ब्लड डोनेशन के लिए किसी भी प्रकार की बाधा न आए। राज्यसभा सांसद श्री शादीलाल बत्रा जी द्वारा हाल ही में बुजुर्गों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक समेकित शोध प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। The Naturopathy and Yoga Center is working in the college premises hand in hand for better treatment of patients. Health University got its recognition from UGC on 11th February 2010 and also got registered with Science and Technology Department, Government of India. MDMS, MDS courses, DM MCH courses, MBBS की सीटों में भी भारी इजाफा हुआ है। A unique, one-of-its-kind academic extravaganza, AMSCON 2013, was organized by students of this institution. Students from all other medical colleges of Haryana participated in hand-on workshops, posters, papers, case presentations and cultural events. इन सब उपलब्धियों के साथ ही पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत है और हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालय फैकल्टी, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों और मेहनत से हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। करते रहेंगे हम खूब से खूबतर की तलाश, करते रहेंगे हम खूब से खूबतर की तलाश, चलते रहेंगे ज़मीं पर, छूते रहेंगे आकाश।